Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. So I hope, as I always said to you all, that you all are fine and everybody is fine at home. Children, as you are board student, so I will always keep this in mind that, and you should also keep it in mind that you all have to prepare yourself for your board examination. And it play a very important role in your whole throughout your life. आपकी कंप्लीट लाइफ में इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. The marks which you get in the board examination, that is not only your marks. It decide your career. It decide your life. That what you will be. Now, the topic which I am going to teach you today is from revision of the chapter Meeting Life Challenges, which is your next revision test to be. So it is a revision of that particular chapter. And the topic which I have taken to teach you today is promoting positive health and well-being. How you can promoting positive health and well-being. How you will be able to promote the positive health in someone. Promoting positive health. Promoting positive health and well-being. So this is our topic of today. Promoting positive health and well-being. It is unlikely that we will go through life without some experience of personal crisis causing acute pressure for a while. Many people sail through and rebuild their lives very positively. See children, there are so many people, ऐसा नहीं होता कभी भी कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो. Everybody is facing any kind of problem. हर कोई किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता है. Now, it's totally up to you how you take the problem. ये पूरी तरह से हमारे ऊपर होता है कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिवली और अदर नेगेटिवली. There are so many alternatives through which you can manage your problem, but we don't search for it. हम लोग सर्च नहीं करते, बिकॉज हम लोग जो सामने आई प्रॉब्लम है उसको एज अ थ्रेट लेने लगते हैं. वी डोंट कंसिडर द प्रॉब्लम एज अ चैलेंज, वी कंसिडर इट एज अ थ्रेट. हम लोग थ्रेट की तरह लेते हैं, चैलेंज की तरह नहीं लेते. इसीलिए हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं. इस रिगार्डिंग मैं आप लोग से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि कैसे हम लोग अपनी पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें. सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इनबॉर्न होती हैं और एक्वायर्ड भी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी. किसी किसी की पर्सनालिटी जो होती है वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट होती है. Someone's personality is stress resistant. Stress resistant यानी वो they are able to cope up with the stress. रेजिस्ट कर लेते हैं वे लोग. ऐसे पर्सनालिटी को हार्डीनेस भी कहते हैं. स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी
इन्हें हम लोग हार्डीनेस भी कहते हैं। दे आर डिफाइंड बाय 3 C's। ये 3 C's से डिफाइन होते हैं। 3 C's। कौन से 3 C's हैं? द फर्स्ट वन इज कमिटमेंट। द फर्स्ट वन इज कमिटमेंट। The second one is control, and third one is challenge. इनमें 3 C's अवेलेबल होते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज। ऐसे लोग हाईली कमिटेड होते हैं, जो वो बोलते हैं वो करके वो दिखाते हैं, ठीक है। It's not like that they are not very much committed. Control, they have a very much control over their emotions and everything, and they take any problem as a challenge. And it is a study by Kobasa. ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी पे जिनकी स्टडी थी वो साइकोलॉजिस्ट का नाम था कोबासा ने किया था। A study by Kobasa has shown that people with high level stress but low level of illness share 3 characteristics which are referred to as the personality traits of hardiness. Kobasa ने कुछ स्टडी किया और उन्होंने ये कहा कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत स्ट्रेस होता है, हाईली स्ट्रेस आउट होते हैं, बट वे बीमार बहुत कम पड़ते हैं। दे यूजली फेल्ट लेस इलनेस। तो उनकी पर्सनालिटी जो होती है वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट होती है, हार्डीनेस पर्सनालिटी होती है। उनमें ये 3 C's पाए जाते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज। Commitment to what you are doing and a feeling, a sense of control over your life, a feeling of challenge, control, which is a sense of purpose and direction in life, commitment to work, family, hobbies and social life, means सभी तरह की लाइफ के टुवर्ड वो कमिटेड होते हैं, whether it is about the work life, social life or personal life. Control over their feeling, control over their life. They know exactly that where they have to go or not, which is a right direction for them and which is a wrong direction for them. ठीक है। इनके अलावा अब now the question arises, some people do not have the stress resistant personality. हर कोई स्ट्रेस रेजिस्टेंट नहीं होता। अब जो नहीं होता तो वो क्या करेगा? तो दे रिक्वायर सम लाइफ स्किल, उनको कुछ लाइफ स्किल सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट आर द लाइफ स्किल विच इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट आवर पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। एक तो पॉजिटिव हेल्थ रहे। पॉजिटिव हेल्थ का कहने का मतलब the meaning which the positive health one is trying to say is that you will get less ill. आप कम बीमार पड़ो, whatever you have the stress but you will be less ill. अगर स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी है तब तो ठीक है, अदरवाइज you will have to all have to talk about some life skill. लाइफ को अच्छे पॉजिटिव हेल्थ को, पॉजिटिव लाइफ को जीने के लिए कुछ लाइफ स्किल होते हैं। द लाइफ स्किल आर द एबिलिटीज फॉर अडैप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू डील effectively with the demands that everyday life poses on us. It makes us adaptive to the environmental demand. Basically, लाइफ स्किल हमें सिखाते हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंज हैं आप उनसे कोप अप कर सको। आप जो भी थ्रेट इन्वायरमेंट हमारे ऊपर पुट ऑन कर रही है आप उन पे फोकस कर सको और आप उनसे ओवरकम कर सको।
ये लाइफ स्किल लर्नड होते हैं और इम्प्रूव भी होते हैं। ठीक है, क्या क्या लाइफ स्किल्स आएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, जिसमें फर्स्ट है assertiveness। Assertiveness, this is the first life skill. Assertiveness is a behavior or skill that helps to communicate clearly and confidently our feelings, needs, want, desire, thought. It is ability to say no to a request, to state an opinion without being self-conscious, or to express emotions such as love, anger, etc. openly. If you are assertive, you feel confident and you have high self-esteem and a solid sense of your own identity. Assertive होना बहुत अच्छी बात होती है for your positive, it definitely promote your positive health and well-being. If you are assertive, you will be stress-free and it definitely leads to a positive health, it definitely leads to the positive well-being. Basically saying no, नो कहना कभी कभी बहुत से आपको लगता होगा ये कौन सी लाइफ स्किल है, ये कौन सी ट्रेनिंग है, इसके लिए कौन भला ट्रेनिंग लेता है। एसर्टिवनेस के लिए कोई एसर्टिवनेस के लिए भी ट्रेनिंग होती है बच्चों, और आपको ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि आपको लग रहा है क्यों कोई लेता है, ये क्या है। ना कहना इतना कौन सा डिफिकल्ट टास्क है, मैं तो बहुत आराम से बोल देता हूँ, मैं तो आराम से कह देता हूँ नो किसी को भी, पर आप कह सकते हो। बहुत से लोग हैं, देर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, आई नो अभी इट इज़ वेरी फ्यू, बट स्टिल देर आर सो मेनी पर्सन हु आर अनएबल टू से नो टू एनीथिंग एंड दैट लीड टू अ काइंड ऑफ स्ट्रेस फॉर दैम। उसकी वजह से वो उनको काफ़ी स्ट्रेस होता है और वो ट्रबल में भी आ जाते हैं नो नहीं कहने की वजह से, वो ट्रबल में आ जाते हैं। कभी कभी अपने बारे में वो नहीं सोचते और दूसरों के बारे में सोचते ज़्यादा हैं। बहुत से लोग हैं अभी भी दैट दे थिंक अबाउट अदर्स देन देमसेल्फ, and that is only the reason they are unable to say no, and there are so many other reasons also for saying no। कहने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं कि लोग नो नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वो अपने इंट्रैक्शन भी बना के रखना चाहते हैं, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को यू कैन से दैट हैम्पर नहीं करना चाहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए भी वो किसी को ना नहीं कहते, पर वो अपने खुद को प्रॉब्लम में रख देते हैं इस सिचुएशन में जब वो ना नहीं कहते। सो जितना फ्रीली आप अपने इमोशंस को ओपन करते हो, उतना ही आपकी पॉजिटिव हेल्थ प्रमोट होती है। अपने इमोशन को, गुस्सा भी दिखाओ और हर एक इमोशंस को शो करो। जितना आप इमोशंस को हाइड करेंगे, जितना आप इमोशंस को दबाएंगे, इट क्रिएट अ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योरसेल्फ। तो हर एक चीज़ शो होनी चाहिए, खुशी है तो वो भी शो हो, दुख है तो वो भी आप बताओ, वट एवर द थिंग्स आर देयर। हाइड करने से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो ये वो बिहेवियर है या वो स्किल है जिसमें कम्युनिकेशन जो है पर्सन लोग बहुत ही क्लियरली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली करते हैं एंड दे से नो टू ऑन एनीथिंग। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल इज, जो मैं आप सभी को बार बार बोलती हूँ, टाइम मैनेजमेंट। Time management is another important life skill which is very important for you all to learn. The way you spend your time determines the quality of your life.
आप जिस तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करते हो वो ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ किस तरीके से चाहते हो। Learning how to plan time and delegate can help to relieve the pressure. The major way to reduce time stress is to change one perception of time. The central principle of time management is to spend your time doing the things that you value or that help you to achieve your goal. See, the meaning of the time management ही पूरी चेंज कर दी यहाँ। टाइम मैनेजमेंट की मीनिंग ही पूरी चेंज हो जाए। टाइम मैनेजमेंट मतलब ये होता है नहीं है कि आप अपने टाइम को कम करो या टाइम को बढ़ाओ। टाइम को इंक्रीज और डिक्रीज करना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं या आपको जो अपनी लाइफ में अचीव करना है उसके लिए टाइम निकालना, दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। Organizing your life to achieve a good positive health is very important and it can be done only through the time management. So now move toward to the third life skill. What is the third life skill which is required to be promote the positive health and well-being? It is the rational thinking. Rational thinking, basically positive thinking. Rational thinking, positive thinking. The way you think and the way you feel are closely related, are closely connected. आप जैसा सोचते हो आप वैसे ही फील भी करने लगते हो, क्योंकि थिंकिंग और फीलिंग बहुत ही एक दूसरे से रिलेटेड है। When we are stressed, we have an inbuilt selective bias to attend to negative thought and images from the past, which affect our perception of the present and future. Some of the principles of rational thinking are challenging your distorted thinking and irrational belief, driving out potentially intrusive, negative, anxiety-provoking thought, and making positive statement. So, 3 चीज़ें हम लोग रैशनल थिंकिंग में कर रहे हैं। पहले तो अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, क्या उन थॉट्स की वजह से क्या क्या एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन हो रहे हैं उनको हम लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं खुद के लिए। तो डेवलपिंग द रैशनल थिंकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू प्रमोट द पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? I hope you understand about the assertiveness, you understand about the time management, and as well as you understand about the rational thinking. Now, the fourth one. Improving relationship, ये भी बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव हेल्थ के लिए। एसर्टिव होना भी ज़रूरी है और रैशनल थिंकिंग करना भी ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव, जो चीज़ हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए हम लोग हो सकता है कह सकते हैं कि हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, तो एसर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, रैशनल थिंकिंग, अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? नहीं सोचिए नेगेटिव।
असर्टिव बनिए। ये अगर आप बेटा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल भी हैं। आप अप्लाई करके देखो, इनका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। नो कहना सीखिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए, हर एक इमोशन को हाइड मत करिए। देखिए क्यों नहीं पॉजिटिव हेल्थ प्रमोट हो रहा। टाइम मैनेजमेंट करिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए, रैशनल थिंकिंग करिए, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, ये भी है, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करिए। जिनसे भी कोई भी क्वारल है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको ट्राई टू रिमूव इट। क्यों रखना? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट वन? वो आपकी क्या हेल्प करेंगे? कोई हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों रखेंगे हम? द की टू अ साउंड लास्टिंग रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन। देखो बार बार बोला जाता है कम्युनिकेशन, यही तो हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए रिलेशनशिप में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बात करिए, गुस्सा भी है या चाहे जो भी है, बट कम्युनिकेशन मत स्टॉप करिए। इससे पॉजिटिव हेल्थ प्रमोट नहीं होगा। इसमें भी कुछ एसेंशियल स्किल आते हैं, जैसे लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे का भी सुनो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपना ही बोलते रहो। अगर आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो लिसन टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग, एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन्स ओपिनियन, दूसरे के भी ओपिनियंस को एक्सेप्ट करो, इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। अगर वो ओपिनियन और फीलिंग आपसे अलग है तो भी, अगर आपको पॉजिटिव हेल्थ अपनी रखनी है तो उनके भी, अदर पर्सन से पहले तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट और लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट। लिसन करिए दूसरा क्या कह रहा है, और एक्सेप्ट द अदर्स पर्सन्स ओपिनियन एंड फीलिंग। And it also requires us to avoid misplaced jealousy and sulking behavior. ठीक है, जेलेसी आप किसी से रख रहे हो किसी भी तरीके का, तो वो मत करो। ये भी, इससे रिलेशनशिप कभी भी बनेंगे नहीं और इम्प्रूव तो कभी नहीं होंगे। तो ये कुछ चीजें करिए, आपके पॉजिटिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आगे नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन इज द सेल्फ केयर। अपनी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग अपनी केयर खुद नहीं कर पाते हैं। सेल्फ केयर मतलब ये नहीं कि हाँ पाउडर और ये सारे मेकअप वेकअप कर रहे हैं तो वो सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मीन्स कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी, कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम इलनेसेस, taking the nutritious food, making yourself healthy from inside, इसे कहते हैं। If we keep ourselves healthy, fit and relaxed, we are better prepared physically and emotionally to tackle the stresses of everyday life. Our breathing pattern reflects our state of mind and emotion. When we are stressed or anxious, we tend toward rapid and shallow breathing from high in the chest with frequent sigh. The most relaxed breathing is slow, stomach-centered breathing from the diaphragm. That is a dome-like muscle between the chest and the abdominal cavity. Environmental stresses like noise, pollution, space, light, color, exert an influence on our mood. They have a noticeable effect on our ability to cope with stress and well-being. So children, you see that self-care means everything. You should exercise regularly, you should do the breathing exercises, you should do the meditation. अपने बारे में, अपने हेल्थ पे भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है अगर आप पॉजिटिव हेल्थ चाहते हो तो। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो एप्लीकेबल हैं डेली लाइफ पे भी। असर्टिव बनिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, रैशनल थिंकिंग करिए, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करिए, दूसरे की भी सुनिए, लिसन अदर व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग एंड सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर्स ओपिनियन, सेल्फ केयर करिए,
Now the last one is overcoming unhelpful habits. कुछ unhelpful habits हैं, उनसे overcome करो. उन habits को रखने की कोई जरूरत नहीं है. तो you have to overcome with the unhelpful habits. This is the last life skill. ये life skills आपको सिखा रहे थे हम. तो यहाँ पे ये last है, ये overcoming unhelpful habit. क्या क्या unhelpful habits हैं जिनसे कि हमें overcome करना है? कौन कौन से unhelpful habits हैं? पहले हमें ये जानना होगा, फिर हम समझ पाएंगे कि हमें उससे overcome करना कितना जरूरी है. तो सबसे पहला unhelpful habit आता है परफेक्शनिज्म. परफेक्शन के चक्कर में हमें बहुत स्ट्रेस होता है. वी वॉन्ट दैट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, एवरीथिंग टू बी इन अ प्रॉपर प्लेस. सब चीज सही सही जगह पे होना चाहिए, प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए. तो परफेक्शनिज्म के पीछे भी हम परेशान होके परफेक्शनिज्म की वजह से भी हमें प्रॉब्लम या हमें स्ट्रेस होता है. तो ये चीज नहीं होना चाहिए, परफेक्शनिज्म. सेकेंड अनहेल्पफुल हैबिट है हमारी अवॉइडेंस. चीज़ों को अवॉइड मत करिए, ये भी हमें हमारे पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट नहीं करता. हम अवॉइड करते हैं. अवॉइड करने का मतलब हम उसको नहीं देखना चाहते. बट क्या आपके नहीं देखने से वो वहाँ से हट जाएगा? नो, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इट विल एग्जिस्ट. वो नहीं रिमूव होगा. आपने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है तो यू हैव ब्लाइंड फोल्डेड योर सेल्फ, बट इट डजेंट मीन दैट नथिंग इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग. द वर्ल्ड हैज स्टॉप. नो, एवरीवन इज मूविंग, एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एट देयर ओन पेस, बट यू हैव ब्लाइंड फोल्डेड योर सेल्फ. सो अवॉइडेंस भी एक अनहेल्पफुल हैबिट है. थर्ड इज द प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन भी मत बनिए. डोंट बी प्रोक्रेस्टिनेटेड. ठीक है. प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक अनहेल्पफुल हैबिट है. मीन्स टालना, चीज़ों को टालना कल पे. बेसिकली हम लोग क्या करें, लेटिंग द थिंग्स फॉर टुमारो. और इस तरह से फिर क्या होता है, एक टाइम आता है जहाँ पे हमारा वर्क कभी भी पूरा नहीं होता. पुटिंग ऑफ व्हाट वी नो वी नीड टू डू. पुटिंग ऑफ यानी चीज़ों को टालते रहना. पुटिंग ऑफ द थिंग्स व्हाट वी नीड टू डू, जिन्हें हमें करना चाहिए हम उसको छोड़ रहे हैं. लाइक आई विल डू इट लेटर. अरे लेटर क्या होता है, आप अभी करो, नाउ. Okay, so people who procrastinate are deliberately avoiding confronting their fears of failure or rejection. वो avoid करते हैं, टालते हैं, putting off करते हैं, तो उससे भी उनको stress होता है. और ये एक habit है, ये सारे तीनों habits जो हैं जिनकी वजह से stress होता है. The person was in the extreme stress. And in order to overcome on these habits is very important for promoting your positive health. अगर आप चाहते हो कि आपके हेल्थ पॉजिटिव हो तो इनसे ओवरकम करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि कैसे कैसे हम लोग अपने पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं. या तो आप स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी बनो, या फिर आप कुछ लाइफ स्किल सीखो, जैसे हाउ टू डू द assertiveness, हाउ टू बी एन assertiveness, हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू डू और हाउ टू थिंक रैशनली, हाउ टू improve your relationship, self-care, overcoming unhelpful habits. So these are some of the life skills which play a very, very important role. And children, don't learn the psychology only theoretically. Apply these concepts into your daily life also, and as well as
solve the problems of others also. अगर आपको नहीं प्रॉब्लम बट आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स या आपके घर में कोई इस तरीके से प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उनकी हेल्प करिए. So children, my topic is completed here and I want from you all to learn this topic properly and revise it. If you find any of the question related to this one, you will ask in the classroom. Thank you so much for carefully listening and observing.